Parliament. So Parliament is basically is the legislative organ of the Union government. Okay, so it is the controlling body. It occupy a preeminent and central position in the Indian democratic political system due to adoption of the parliamentary form of government, also known as Westminster model of government. So parliamentary government is also known as Westminster model of government. Article 79 to 122 in Part 5th of Constitution deal with organization, composition, duration, officers, procedures, privileges, powers, and so on of the Parliament. Okay, so everything is being deal in Article 79 to 122. Parliament is in Article 79 to 122 in Part 5th of the Constitution. Now, organization of Parliament. It is under the three parts: the President, second, the Councils of States, third, the House of Peoples. So, Parliament is consists of President, of President, Council of the State, second, House of the Peoples. These three things makes the Parliament. Now, Rajya Sabha is the upper house, second chamber or House of Elders. We denote Rajya Sabha as the upper house or second chamber or the House of Elders, and Lok Sabha as the lower house, first chamber or the popular house. Okay, why we call is lower house or first chamber or popular house lower house? We carry on. So the state and the union territory of Indian Union, while the latter represent the people of India as a whole. Okay, so the Rajya Sabha represent the state and union territories of Indian Union. Okay, while the Lok Sabha represent the people of India as a whole, because in Lok Sabha all the member which are been elected, because we take all the people of India in them, but in Rajya Sabha we represent the states and union territory. Every states we denote some peoples, and these represent the Rajya Sabha. So the President of India is not a member of either House of Parliament. Okay, so President is not a member of either House of Parliament and does not sit in the Parliament to attend its meeting. So President of India is not a member of either House of Parliament. He is not a member and does not sit in the Parliament to attend its meeting. Okay, so he didn't sit in the Parliament to attend meeting. He is an integral part of Parliament. तो हम क्यों कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट पार्ट है पार्लियामेंट का? बिकॉज क्योंकि वो एक तो बैठ नहीं रहा है, ठीक है, और वो मेंबर भी नहीं है कोई भी मेंबर, ना लोअर हाउस का ना अपर हाउस का. तो हम क्यों कह रहे हैं कि ये तीन चीज़ें, जो प्रेसिडेंट हो गया, काउंसिल ऑफ स्टेट हो गया और हाउस ऑफ पीपल हो गया, ये तीन चीज़ मिला के पार्लियामेंट ऑफ इंडिया बना रहा है. क्यों कह रहे हैं? ठीक है, दिस इज बिकॉज अ बिल पास बाय बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट कैन नॉट बिकम लॉ विदाउट द प्रेसिडेंट असेंट्स. ओके, सो बिना प्रेसिडेंट के अनुमति के वो बिल नहीं बन सकता. जब, ठीक है, इवन दो अगर आपने दोनों हाउस पास भी कर दिया तब भी वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा और वहाँ से पास होने के बाद ही वो बिल बन पाएगा. ठीक है, सो लॉ तब तक नहीं बनेगा जब तक कि वो प्रेसिडेंट उसको सहमति ना दे उसमें. ठीक है, एंड ही समन एंड prorogues both houses, dissolve the Lok Sabha, address both houses, issue ordinance when they are not in session, and so on. So basically डायरेक्ट वे में तो वो बहुत कुछ नहीं कर रहा, पर इनडायरेक्ट वे में वो एक सम्मन कर रहा है, प्रोग्यूस कर रहा है दोनों हाउसेस को, डिसॉल्व कर रहा है लोकसभा को, एड्रेस कर रहा है दोनों हाउसेस को, इशू कर रहा है ऑर्डिनेंस. ठीक है, व्हेन दे आर नॉट इन सेशन में नहीं है तब भी उनको ऑर्डिनेंस इशू कर रहा है. ठीक है, तो इन दिस रिस्पेक्ट में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक है, रिलाइड ऑन ब्रिटिश पैटर्न रेदर देन द अमेरिकन पैटर्न. सो वी आर बेसिकली more inclined toward the British pattern rather than the American pattern. Okay, in Britain the parliament consists of the crown, king or queen. Okay, the House of Lords, upper house, and the House of Commons, lower house. Okay, so in Britain there is a upper house, House of Lords, and House of Commons, lower house. Okay, so there also there is a crown and king and queen, and there is upper house and lower house. Same way we have also implement the British system. Okay,
The American president is not an integral part of a legislature, whereas if we see the USA part of a constitution. Okay, so American president is not an integral part of legislature. Okay, so he is not integral part, but in our constitution, the president is an integral part, because every or in some manner he is responsible for the functioning of the parliament. Okay, directly or indirectly. In USA, the legislature, which is known as Congress, consists of Senate upper house एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशन लोअर हाउस. ठीक है, तो वहाँ पर जो कांग्रेस है, ठीक है, वो बना हुआ है सीनेट से, अपर हाउस से, और जो हाउस लोअर हाउस है, जो उसको हम हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेटिव्स कहते हैं लोअर हाउस में. तो ये है हमारा पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर. ठीक है, सो द पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एम्फसाइज ऑन द इंटरडिपेंडेंस बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन. ठीक है, वो इंटरडिपेंडेंस है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स में. हेंस वी हैव द प्रेसिडेंट इन पार्लियामेंट लाइक द क्राउन इन पार्लियामेंट इन ब्रिटेन. ठीक है, तो जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ऑन द अदर हैंड लिस्ट ऑन, तो वही है. ठीक है, तो जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है उसको हम रिगार्ड नहीं करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट ऑफ कांग्रेस. ठीक है, तो एक वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट नहीं है कांग्रेस का अमेरिकन प्रेसिडेंट. नाउ कंपोजिशन ऑफ टू हाउसेस, हाउ द कंपोजिशन ऑफ टू हाउसेस आर बीन एस्टैब्लिश्ड. तो कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा, सो द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा इज फिक्स्ड एट 250. ओके, सो इट इज़ बीन फिक्स्ड एट 250, out of which 238 are to be representatives of the state and union territory elected indirectly, and 12 are nominated by the president. Again, 250 is the fixed strength, maximum strength of Rajya Sabha, and 238 are the representative of the state. 238 is the representative of the state, and union territory elected directly इनडायरेक्टली. ठीक है, जो यूनियन टेरिटरी उनसे इनडायरेक्टली रिप्रेजेंटेटिव होंगे. एंड 12 नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, 12 को नॉमिनेट करेगा अपना प्रेसिडेंट. ठीक है, वो कहीं से हो सकते हैं, आर्ट एंड कल्चर से, जो भी अलग अलग फील्ड्स हैं वहाँ से होंगे. और बाकी तो 38 में से कुछ ज़्यादातर होंगे रिप्रेजेंटेटिव स्टेट्स के, और कुछ होंगे यूनियन टेरिटरी से जिनको इलेक्ट किया जाएगा इनडायरेक्टली. ठीक है, नाउ ये हम बात कर रहे हैं राज्यसभा की. ठीक है, तो जैसे कि हम जानते हैं कि राज्यसभा में हम मेंबर चुनते हैं, जो कि बेसिकली कौन है, वो लोग हैं जो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और यूनियन टेरिटरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है, ऐसा है. तो 4th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील विद एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा टू द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज. तो 4th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन का डील करता है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा में, स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरी में. ठीक है, अब आता है पहला रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट. स्टेट में कैसे रिप्रेजेंटेशन होता है. द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट इन राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. ठीक है, तो जो राज्यसभा में जो इलेक्टेड है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से इलेक्टेड है. द इलेक्शन इज हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. ठीक है, तो ये होगा आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जो कि एक सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है. ठीक है, जो सीट का एलोकेशन है, ठीक है, स्टेट में टू द स्टेट इन राज्यसभा ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन. मतलब मान लीजिए जैसे उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो वहाँ के जो मेंबर्स हैं, वहाँ के जो पीपल्स हैं, उनको ज़्यादा इलेक्ट किया जाएगा बजाय उत्तराखंड के, क्योंकि उत्तराखंड में पॉपुलेशन कम है. अब जो पॉपुलेशन ग्राफ है वो फिक्स किया गया है बहुत पहले. ठीक है, उस समय जो चीज़ लॉक की गई थी अभी भी वही लॉक है. मतलब कि 1991 की जो सेंसस था उसमें देखा गया था. ठीक है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ जो 2001 का जो सेंसस था, ठीक है, उस पर बेसिस पर मैं देखा था कि उस समय क्या मेंबरशिप है, उस समय क्या रिप्रेजेंटेशन है, या फिर उस समय क्या जनगणना है, उसके आधार पे सब कुछ तय किया गया था. ठीक है, सो फॉर एग्जांपल जैसे कि उत्तर प्रदेश है 31 मेंबर, वाइल त्रिपुरा के एक ही मेंबर हैं. ठीक है, तो उसके हिसाब से किया जाएगा कि हाँ भाई इसको ज़्यादा यहाँ पर इसके जो स्टेट है इसके रिप्रेजेंटेटिव ज़्यादा होंगे एंड अदर स्टेट रिप्रेजेंटेटिव आर बीन लो. So however in USA all the states are given equal representative in the Senate irrespective of their population. तो जैसे कि यूएसए देखिए सारे स्टेट को एक इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे गया है. ठीक है, सेनेट में रिस्पेक्टिव इनकी पॉपुलेशन है. यूएसए हैज़ 50 स्टेट. ठीक है, एंड द सेनेट हैज़ 100 मेंबर हैं, 2 हैं ईच स्टेट से. ठीक है, तो ऐसा वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन है. नाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी.
representative of each union territory in Rajya Sabha are indirectly elected by the member of electoral college. So union territory member are being elected by electoral college specially constituted for the purpose. The electoral college is simply specially constituted for the purpose of representation of union territory members. This election held accordance with the system of proportional representation by means of single transferable vote. Okay, out of 7 union territory, only Delhi and Pondicherry have representation in Rajya Sabha. So no other union territory have representation in Rajya Sabha, only Delhi and Pondicherry. The population of other 5 union territories is too small to have any representation in Rajya Sabha. हम पढ़ेंगे कि कंपोजिशन ऑफ लोकसभा क्या है, ठीक है। जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है लोकसभा की वो फिक्स्ड है 552 में। अगेन मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ है लोकसभा की वो फिक्स्ड है 552 में, जिसमें से 530 मेंबर्स हैं आर टू बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट, ठीक है। जो 530 मेंबर्स होंगे वो रिप्रेजेंटेटिव होंगे स्टेट के, ठीक है। और 20 मेंबर होंगे क्या, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी के रिप्रेजेंटेटिव होंगे 20 मेंबर और स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होंगे आपके 530 मेंबर। तो ये कितने हो गए, 550 हो गए। बाकी जो 2 मेंबर हैं वो नॉमिनेट करेगा प्रेसिडेंट फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, ठीक है। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से वो इलेक्ट करेगा बेसिकली, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट क्या है, ठीक है। तो स्टेट में रिप्रेजेंटेशन लोकसभा डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल फ्रॉम द टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी इन द स्टेट, ठीक है। तो उनको डायरेक्टली टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी के द्वारा उनको इलेक्ट किया जाएगा। और जो इलेक्शन होगा वो बेस्ड होगा प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है। जो प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है उस पर बेस पे इलेक्शन होगा। और हर जो इंडियन सिटीजन्स हैं हु इज़ अबव 18 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है, जो 18 साल से ऊपर हैं, एंड हु इज़ नॉट डिस्क्वालीफाइड अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो डिस्क्वालीफाइड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। और एनी लॉ इज़ एलिजिबल टू वोट एट सच इलेक्शन, ठीक है। कोई भी लॉ में वो एलिजिबिलिटी है वोट करने को ऐसे में, ठीक है। द वोटिंग जो एज है वो रिड्यूस कर दी गई है 21 से 18 ईयर्स बाय 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1988, ठीक है। जो वोटिंग एज है उसको रिड्यूस किया गया है 21 से 18, जो 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 1988 का, उसने, ठीक हो गया। अब आता हमारा सेकेंड, रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी में कैसे रिप्रेजेंटेशन है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन इम्पावर करता है पार्लियामेंट को टू प्रिस्क्राइब द मैनर ऑफ चूजिंग द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनियन टेरिटरी इन द लोकसभा। तो कॉन्स्टिट्यूशन इम्पावर करता है पार्लियामेंट को ताकि प्रिस्क्राइब करे मैनर ऑफ चूजिंग द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनियन टेरिटरी टू इन द लोकसभा। लोकसभा में पार्लियामेंट इंटेक्टेड द यूनियन टेरिटरी, ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ द हाउस ऑफ पीपल, ठीक है। उनने इंटैक्ट कर रखा है यूनियन टेरिटरी जो डायरेक्ट इलेक्शन है हाउस ऑफ पीपल का एक्ट 1965, जिसके द्वारा मेंबर्स ऑफ लोकसभा फ्रॉम द यूनियन टेरिटरी, जो लोकसभा के मेंबर है यूनियन टेरिटरी से, आर ऑल्सो चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है। तो लोकसभा के मेंबर यूनियन टेरिटरी से उनको आप चूज़ कर सकते हो डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा। ये है हमारा यूनियन टेरिटरी का हमारा ओके। नाउ आता है थर्ड, नॉमिनेटेड मेंबर। प्रेसिडेंट के नॉमिनेट 2 मेंबर फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, 2 मेंबर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से, ठीक है, वो इलेक्ट कर सकते हैं। तो उसको 2020 तक उसको एक्सटेंड किया गया था, ठीक है, नॉमिनेटेड मेंबर वाला, बट अब ये इसको हटा दिया गया है, ठीक है। तो अभी नॉमिनेटेड जो मेंबर्स हैं उनका ग्राफ वही है कि हम 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से लेते हैं लोकसभा के अंडर, ठीक है। तो लोकसभा में ऐसा ही है कि हम 552 जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, जिसमें से 550 मेंबर्स हैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स एंड 20 मेंबर हैं यूनियन टेरिटरी के रिप्रेजेंटेटिव, और 2 मेंबर हैं जो प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेटेड हैं जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा लोकसभा का। अब हम देखते हैं जो सिस्टम ऑफ इलेक्शन है लोकसभा में कैसे होते हैं, ठीक है। तो ये है आपका टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी, ठीक है। फॉर द पर्पज ऑफ होल्डिंग डायरेक्ट इलेक्शन टू द लोकसभा ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी, ठीक है। हर जो स्टेट है उसको डिवाइड किया गया टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी में। पहला, ईच स्टेट इज अलॉटेड अ नंबर ऑफ सीट इन द लोकसभा इन सच अ मैनर दैट द रेशियो बिटवीन दैट नंबर एंड इट्स पॉपुलेशन इज सेम फॉर ऑल स्टेट, ठीक है। इस तरीके से बनाया गया है ताकि जो पॉपुलेशन है और जो नंबर है, ठीक है, जो सीट है उसका रेशियो सेम रहे, ताकि जो पॉपुलेशन के हिसाब से दिया गया और
ठीक है, जितनी उसकी पॉपुलेशन है, दिस प्रोविजन डज नॉट अप्लाई टू स्टेट हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ लेस देन 6 मिलियन, ठीक है। ये जो एलोकेशन है वो ये अप्लाई नहीं करता है जो इसमें पॉपुलेशन 6 मिलियन से लेस है। ईच स्टेट सेकंड ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी इन सच अ मैनर दैट रेशियो बिटवीन the population of each constituency and the number of seats allotted to it is the same throughout the state. So मैंने जो रेशियो है पॉपुलेशन ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूंसी एंड द नंबर ऑफ सीट अलॉटेड टू इट सेम थ्रू आउट द स्टेट। ओके, सो दिस इज बीन कीप इन माइंड while applying the territorial constituency, ठीक है। In brief, the constitution ensured that there is first uniformity of representation in two respect. Okay, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए दो रिस्पेक्ट में। पहला, बिटवीन द डिफरेंट स्टेट्स दे ऑल हैव टू बी इक्वल। सेकेंड, बिटवीन द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द सेम स्टेट। सो जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें भी यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। नाउ वी केम टू द नेक्स्ट टॉपिक, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नॉट अडॉप्टेड। ये क्या है? तो यहाँ पर जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है उसको अडॉप्ट नहीं किया गया है। मतलब थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ अडॉप्टेड सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इन द केस ऑफ राज्यसभा, इट हैज़ नॉट प्रिफर्ड द सेम सिस्टम इन द केस ऑफ लोकसभा। ओके, वी अडॉप्टेड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा बट नॉट द केस इन लोकसभा, ठीक है। इंस्टेंट इट हैज़ अडॉप्टेड द सिस्टम ऑफ टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन फॉर द इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा। एज वी नो, टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है, हर टेरिटरी के हिसाब से लोग चुनते हैं और उनके भी लीडर चुनते हैं और उसके बाद वहाँ पर बनता है लोकसभा में। पर राज्यसभा में ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ से स्टेट से पिक जो कि मेंबर्स हैं उनको पिक किया जाता है राज्यसभा में, ठीक है। तो अंडर टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन ईच मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर represent a geographical area known as constituency. Okay, so basically territorial representation. Okay, तो हम जानते हैं कि लोकसभा में टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है, तो वहाँ पर टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन के अंदर एवरी मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर रिप्रेजेंट अ जोग्राफिकल एरिया नोन एज कॉन्स्टिट्यूएंसी। सो वहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी दी जाती है, उनको एक जगह दी जाती है कि हाँ भाई ये तेरा इलाका है, ठीक है। फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी ओनली वन रिप्रेजेंटेटिव इज इलेक्टेड। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया जाता है। हैंस सच अ कॉन्स्टिट्यूएंसी इज नोन एज सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी को हम क्या कहते हैं? सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं। इन दिस सिस्टम, ठीक है, ये सिस्टम में अ कैंडिडेट हु सिक्योर मेजॉरिटी ऑफ वोट, जो सिक्योर करता है मेजॉरिटी ऑफ वोट्स, इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड, ठीक है, उसको डिक्लेयर करते हैं इलेक्टेड। दिस सिंपल मेजॉरिटी सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन डज नॉट रिप्रेजेंट द होल इलेक्टोरेट, ठीक है। जो सिंपल मेजॉरिटी सिस्टम है रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंटेशन का, वो रिप्रेजेंट नहीं करता है होल इलेक्टोरेट, ठीक है। अदर वर्ड में, इट डज नॉट सिक्योर ड्यू रिप्रेजेंटेशन टू माइनॉरिटी स्मॉल ग्रुप्स। सो बेसिकली ज़रूरी नहीं है कि आप जो स्मॉल ग्रुप्स हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, उनको भी आप एक सिक्योर रिप्रेजेंटेशन दें वहाँ पर, ठीक है। नाउ द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एम एट इम्प्रूविंग द डिफेक्ट ऑफ टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन। जो सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल है उसका जो एम है वो है कि रिमूव करना डिफेक्ट ऑफ टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन। ये सिस्टम में ऑल सेक्शन ऑफ पीपल गेट्स द रिप्रेजेंटेशन इन प्रोपोर्शन टू देयर नंबर। सो जो सिस्टम है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का एम है रिमूविंग करना डिफेक्ट ऑफ टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन। सो बेसिकली द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन means categorizing the things and proportionally giving the value to the according to the number of people, ठीक है। तो aim at removing the defect of territorial representation, we know there is so many defect in territorial representation because it basically focus on the geographical area, okay। Under this system all section of means under the proportional representation and all section of people get representation in proportion to their number, okay। So basically if like Uttar Pradesh is so large, okay, but there is people so large and population is so large, so you are getting the more means simply like if you for example Kerala, okay, Kerala has a more land but its population is less. Uttarakhand has a less land but its population is more. So basically there is so many conflict over there, so to balance them
proportional representation is being adopted. So all section of people get representation in proportion to their number. So what is the proportion of their number? According to that, they get the seat over there. Okay, even the smallest section of the population get its due share of representation in legislature. Means even like if example, Punjab is so low, means its area is so low. So basically he also get, or Haryana or Chandigarh, okay, so they also get representation in legislature. Okay, this is the main criteria or main thing that keep in mind. Okay, two kind of proportional representation, namely first single transferable vote system, second one is list system. Basically in India, the first kind is adopted for the election of member in Rajya Sabha and state legislature council for electing the president and the vice president. So single transferable vote system is being basically adopted in state legislative council for electing the president and the vice president. Okay, means the voting system is going on, and there is first, second, third, and whomever get the first seat and more number of seat, all the votes goes to there. Okay, so through some member of Constitution Assembly had advocated the system of proportional representation for election of member of लोक सभा. ठीक है, सबने कहा कि ये होना चाहिए जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है. तो लोकसभा हैज़ नॉट अडॉप्टेड द सिस्टम ड्यू टू 2 रीज़न. ठीक है, लोकसभा ने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं स्वीकार किया? 2 रीज़न की वजह से. पहला, डिफिकल्टी फॉर वोटर टू अंडरस्टैंड द सिस्टम विच इज़ कॉम्प्लिकेटेड ड्यू टू लो लिटरेसी स्केल इन द कंट्री. ठीक है, अब जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है उसको समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लिटरेसी रेट बहुत लो है इंडिया में. ठीक है, और कॉम्प्लिकेटेड भी है. और दूसरा, अनसूटेबिलिटी टू द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट ड्यू टू द टेंडेंसी ऑफ सिस्टम टू मल्टीप्लाई पॉलिटिकल पार्टी लीडिंग टू इनस्टेबिलिटी इन द गवर्नमेंट. सो बेसिकली व्हाट हैपन इज दैट in every 5 year or 6 year there is a new political party emerge. Okay, so emerging a new political party disturb this suitability. Okay, so they didn't, so they avoid this proportional representation. So additional system of proportional representation have following demerits. तो उसके demerits भी हैं कुछ, जैसे कि पहला बहुत एक्सपेंसिव है, दूसरा does not give any scope for organizing by election. ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग इलेक्शन को कोई स्कोप नहीं देता है. थर्ड, इट एलिमिनेट इंटीमेडेट कॉन्टेक्ट बिटवीन वोटर्स एंड रिप्रेजेंटेटिव्स. तो जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हम एरिया वाइज देखें तो उसमें क्या होता है कि जो वोटर्स होते हैं उनका पूरा कॉन्टेक्ट होता है. ठीक है, जिसको भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं. बट इसमें क्या होता है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में कि वहाँ पर वोटर्स और रिप्रेजेंटेटिव का कॉन्ट्रैक्ट हट जाता है, और वो प्रमोट करता है माइनॉरिटी थिंकिंग. ठीक है, जो लेस में होंगे उनकी थिंकिंग को प्रमोट करता है इन ग्रुप्स इंटरेस्ट. ठीक है, तो ये भी एक है. और 5 वो इंक्रीज़ करता है सिग्निफिकेंस ऑफ पार्टी सिस्टम एंड डिक्रीज दैट ऑफ वोटर. ठीक है, वो पार्टी सिस्टम को ज़्यादा वैल्यू देता है, वोटर्स को कम देता है, तो उसको हटा दिया गया था. अब हम जाते हैं ड्यूरेशन ऑफ 2 हाउसेस, जो कि दूसरी वीडियो में देखेंगे हम.